আপনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ 3 দিন ধৰি বিৰোধীয়ে উত্তাল কৰি ৰখা সদনত সৰব হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ উত্তৰ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কঠোৰ সমালোচনা কৰিলে বিৰোধীক আদানী গ্ৰুপৰ পতনক লৈ লোকসভাৰ মজিয়াত ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰক সমালোচনাৰে বিৰোধীয়ে সদন উত্তাল কৰি তুলিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে গৌতম আদানীৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পুৰণি ফটো এখন দেখুৱাই লোকসভাৰ মজিয়াত ৰাহুল গান্ধীয়ে তুলিছিল 4টা প্ৰশ্ন কেইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে আদানীয়ে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছিল বিজেপিৰ ইলেক্টৰেল বণ্ডৰ সৈতে কেনেকৈ লাভান্বিত হৈছিল আদানী 2014 চনত 609 নম্বৰ স্থানৰ পৰা 2022 চনত দ্বিতীয় স্থানলৈ কেনেকৈ উন্নীত হ'ল আদানী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভ্ৰমণ কৰা দেশৰ পৰা কিমান কাম পাইছে আদানী এইবোৰ প্ৰশ্ন আছিল ৰাহুল গান্ধীৰ আৰু তাৰ পাছতেই তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ এইদৰে আগবঢ়ালে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমি দুইটা ভাষ্য আপোনালোকক শুনাম आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा आदरणीय अध्यक्ष जी No, in fact, Prime Minister was shell shocked. He was in shock and there was no answer. एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं वहाँ कितनी बार मिले हैं तो सिंपल से सवाल थे जवाब नहीं दिया जवाब मिला आपको No, I'm not satisfied but it reveals the truth. हिंदी में ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा इंक्वायरी की बात नहीं हुई अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ इंक्वायरी की बात नहीं हुई डिफेंस इंडस्ट्री है वहां पे शेल कंपनीज हैं बेनामी पैसा घूम रहा है उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं उनको मेरा कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे चेक कराएंगे क्या है इसमें बहुत बड़ा घपला है मगर वो भी नहीं बोला तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बट मैं समझता हूँ मतलब उसका कारण भी है थैंक यू আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে অনা অভিযোগৰ পিছতে সদনত সৰব হৈ পৰিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সদনৰ মজিয়াত উদাত্ত ভাষণেৰে কংগ্ৰেছক তুলা ধুনা দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাহুল গান্ধী তথা বিৰোধীৰ মুখ বন্ধ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সদনৰ মজিয়াত দিলে চৰকাৰৰ সফলতাৰ খতিয়ান প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'লে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধই বহু দেশতেই প্ৰভাৱ পেলাইছে প্ৰভাৱ পৰিছে ভাৰতৰ সুবুৰীয়া দেশতো বিপৰীতে বিশ্বৰ পঞ্চম অৰ্থনীতিৰ দেশ হিচাপে উত্তৰণ ঘটিছে ভাৰতৰ কিন্তু ভাৰতৰ উত্থানক বহু লোকে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই 90,000 ষ্টাৰ্টআপেৰে ভাৰত এতিয়া বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহত্তম দেশ বিৰোধী সমালোচনা কৰি ক'লে ইউপিএ চৰকাৰৰ 10 বছৰীয়া শাসনকাল আছিল দুৰ্নীতিৰ দশক ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধই বহু দেশতেই প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ বিপৰীতে বিশ্বৰ পঞ্চম অৰ্থনীতিৰ দেশ হিচাপে উত্তৰণ ঘটিছে ভাৰতৰ ये झूठे आरोप लगाने वालों पर मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे क्या आदरणीय अध्यक्ष जी वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है वो आपकी झूठी बातों पर आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा आदरणीय अध्यक्ष जी जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं वो आपकी गालियां आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा तुम्हारी गलतियों को गालियों को कैसे स्वीकार करेगी जिंदगी बच गई है उनकी मुसीबत के समय मोदी काम आया है तुम्हारी गालियां को वो कैसे स्वीकार करेगा कैसे स्वीकार करेगा বৰ্তমান উত্তৰ পূবত টেৰৰিজিমৰ সলনি টুৰিজম বৃদ্ধি হৈছে উত্তৰ পূব দেশৰ আন ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে সমগতিত বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ যাত্ৰাত ধাৱমান হৈছে
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত উত্তৰ পূবৰ ৯৫% উগ্ৰবাদী সংগঠনৰ সদস্য ইতিমধ্যে শান্তি চুক্তিৰ জৰিয়তে মূল খুঁটিলৈ উভতি আহি ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ পৰিৱৰ্তে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ সহযোগী হৈছে। কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ এটা শেহতীয়া টুইটৰ উদ্ধৃতি দি সদনত এই মন্তব্য সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ। ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ মানচিত্ৰখনক সদায় কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰী আৰু গুজৰাটৰ পৰা পশ্চিমবংগলৈ বুলিয়ে স্বীকৃতি দি আহিছে। কংগ্ৰেছে পাহৰি যায় যে বংগৰ পিছতো ভাৰতবৰ্ষৰ মানচিত্ৰত উত্তৰ পূবৰ আৰু ৮খন ৰাজ্য আছে। কিছু বছৰ আগলৈকে উত্তৰ পূব বুলিলে কেৱল সন্ত্ৰাসবাদ, আন্দোলন, হৰতাল আৰু মৃত্যুৰ খবৰে ভৰি আছিল। এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শাসনভাৰ লোৱাৰ পিছত উত্তৰ পূবৰ পৰিৱেশ সলনি হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে সাংসদগৰাকীয়ে। उत्तर पूर्व में आज टेररिज्म नहीं है, उत्तर पूर्व में आज टूरिज्म है। इसी समय राइट एट दिस मोमेंट G20 का Y20 समिट अभी चल रहा है, लेकिन just 10 years ago we used to see headlines related to terrorism. ये संभव किसके लिए हुआ? I know even my friends from the opposition can answer it. It is because of Modi ji. The answer is known even to the friends from the opposition. और क्योंकि उत्तर पूर्व ही अब विशाल भारत का ग्रोथ इंजन है, जिसके चालक है हमारा परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के प्रधान सेवक का दायित्व ग्रहण करने के बाद ही उत्तर पूर्व में उग्रवाद का घटना 74% कम हुआ है। जो अपना दिग्विजय सिंह साहब बोल रहा था अमृतकाल किसके लिए, कहां के लिए, हम अमृतकाल इज फॉर नॉर्थ ईस्टर्न पीपल। डिक्रीज ऑफ 70% ऑफ एक्टिविटीज इन द टेररिज्म। 8,000 से अधिक उग्रवादी ने आत्मसमर्पण किया है। राष्ट्रद्रोह नहीं, अब राष्ट्र निर्माण में वो लोग दे आर डेडिकेटेड देमसेल्फ। 4.5 करोड़ नॉर्थ ईस्टर्न के लिए यही है अमृतकाल। द ऑफिशियल ट्वीट on 10/2/22 in an official handle which was tweeted, there is strength in our nation, our union of culture, our union of diversity, our union of languages, our union of people, our union of states, from Kashmir to Kerala, from Gujarat to West Bengal. India is a beautiful in all its colors, don't insult the spirit of India, I unquote. अरे नॉर्थ ईस्ट किधर है भाई, हम भी है। बंगाल का उस तरफ हम भी, वी आर 7 स्टेट्स, अखंड सांस्कृतिक भारत का अभिन्न अंग है हजारों सालों में। लेकिन द मेन हीरो ऑफ द भारत जोड़ो यात्रा, ही ट्वीटेड ऑफिशियली दैट हिज मैप ऑफ इंडिया, द कांसेप्ट ऑफ इंडिया इज कश्मीर टू कन्याकुमारी, सही है, फ्रॉम गुजरात टू बंगाल। अरे बंगाल का उस तरफ भी हम लोग है ना, असम है। पॉलिटिकल टूरिस्ट होने का नाते यू विजिट वेरी फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द डेज ऑफ इलेक्शन। अरे प्लीज अंडरस्टैंड का बात क्या है भाई? अरे यू सी इट्स ऑफिशियली ट्वीटेड। ये सब समझने का बात क्या है सर? द लीडर हैज ट्वीटेड दैट हिज कांसेप्ट ऑफ इंडिया, हिज इंडिया, एक Class 6 का student can understand this. That from Kashmir to Kanyakumari, for Gujarat to Bengal, this is his India. So जिसका इंडियन कॉन्सेप्ट में हम उत्तर पूर्वी नहीं है, उनका भारत जोड़ो हमारे लिए तो भाई नॉर्थ ईस्टर्न पीपल के लिए एक मजाक है। अभी हमारे साथी आकर ही हमारे माननीय सदस्य नॉर्थ ईस्ट के लिए कह रहे थे। मैं कहूंगा जरा एक बार नॉर्थ ईस्ट हो आइए। आपके जमाने का नॉर्थ ईस्ट और आज के जमाने का नॉर्थ ईस्ट, आधुनिक चौड़े हाईवे हैं, रेल की सुख सुविधा वाली सफर है, आप आराम से हवाई जहाज से जा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के हर कोने में आज बड़ी, और मैं गर्व के साथ कहता हूं, आजादी का 75 साल मना रहे हैं, तब मैं गर्व से कहता हूं 9 साल में करीब 7500 7,500 7,500 जो हथियार के रास्ते पे चल पड़े थे, ऐसे लोगों ने सरेंडर किया और अलगाववादी प्रवृत्ति छोड़ करके मुख्य धारा में आने का काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज त्रिपुरा में लाखों परिवारों को पक्का घर मिला है, उसकी खुशी में मुझे शरीक होने का अवसर मिला।
जब मैंने त्रिपुरा में हीरा योजना की बात कही थी, तब मैंने कहा था हाईवे, हाईवे, रेलवे और एयरवे, ये हीरा का आज सफलतापूर्वक त्रिपुरा की धरती पर मजबूती नजर आ रही है। त्रिपुरा तेज गति से आज भारत की विकास यात्रा का भागीदार बना है।